Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students. Today I am going to deliver lecture number 5 today, and this topic is about translation. Translation is very much common in our, you can say, traditional teaching methodology, and it is called GTM, grammar, translation, method. And in grammar translation method, you know, it is very much traditional and it is very much in our school and colleges. And what does grammar translation method? That first of all, teacher is active participants in GTM method, and teacher gives exercise, teacher deliver lecture, teacher does each and everything, but there is no any type of performance on the behalf of students, that whether they have to present themselves, whether they have to give any type of spoken activities. Rather than the focus of student and teacher is on writing. And what type of writing is there? That you have to search words and from dictionaries, and one thing you have to perform vocabulary. What type of vocabulary should be there? There should be two type of words. Suppose here English words are there, and here Urdu words are there. And from recently, when a student taught according to grammar translation method, they say that A for apple, and meaning of apple is seb in Urdu. Ball, gend. Cat, Billy. So translation, these are translation, and if you want to practice translation, then your vocabulary should be strong. If your vocabulary is not strong, it means that you can't do any type of translation practice. First of all, you have to learn vocabulary. Second is, I have already told you about the structure of sentences. As we have studied all the things, parts of speech, tenses, active voice and passive voice. Now I am giving you little bit exercise about, first of all, you have to learn vocabulary, then you have to learn tenses. Tenses gives you the structure of a language. So translation is for those type of people who want to learn English according to methodology of Urdu language. Suppose he is going to school, some type of word, you have to translate this thing into Urdu. And sometimes that वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल जा रहा है. Sometimes they give you activity about this, that translate from Urdu to English. That वो स्कूल जा रहा है, translate it into English, and he is going to school, translate it into Urdu. So I am giving you
translation techniques. For translation techniques, there are, you can say that, concepts and meaning should be clear. And if you are fulfilling the role of meaning, then it means you have completed your work clearly. Suppose there is a difference between past simple and present perfect. That उसने इम्तिहान पास कर लिया, this is not past simple. उसने इम्तिहान पास कर लिया है, but it looks closer to past simple, just like he has passed the exam. He has passed the exam. And now if I say this is present perfect, and if we cross it, what will be the past perfect? That उसने इम्तिहान पास कर लिया, we can translate it, he passed the exam. He passed the exam. So there is little bit difference between past simple, present perfect, but at this level, when you are doing functional English for your practical purpose, for your implementation, then both can be possibility that you have to give your message, you have to give your message that other people can understand your message very well. So उसने इम्तिहान पास कर लिया and उसने, there is a little bit different. So there are other techniques that we will go forward toward form of the verb, and during the form of the verb you will find it very much easiest to translate into English. So we are going forward. You can say there are three forms of the verb: go, went, gone. So this is present tense. First form is for always, first form of the verb is always used for present. After that we will move forward. This is first form of the verb, this is second form of the verb, this is third form of the verb. Now first of all I will move forward only about first form of the verb. That if you will put here I go, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, here you will put I, and instead of go, if I will write here play,
आई गो मैं जाता हूं, आई प्ले मैं खेलता हूं, आई राइट मैं लिखता हूं, आई रन मैं दौड़ता हूं, आई टीच मैं पढ़ाता हूं, आई ईट मैं खाता हूं, आई थिंक मैं सोचता हूं। सो जब भी पहली फॉर्म लगाई जाएगी वर्ब की, उसमें यह चीजें होगी जी कि मैं खेलता हूं, आई प्ले, मैं दौड़ता हूं, आई रन, मैं जाता हूं, आई गो। सो दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल। बट आफ्टर प्रेजेंट सिंपल next will be present continuous. Present, this is present simple. And you know how to change it negative and interrogative. I have already told you in the previous lecture, but do not plus फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड हियर। मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो, मैं नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं लिखता हूं, आई डू नॉट राइट, मैं नहीं दौड़ता हूं, आई डू नॉट रन, मैं नहीं पढ़ाता हूं, आई डोंट टीच, डोंट यू कैन से वेल स्पोकन बट डू नॉट, आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूं, आई डू नॉट थिंक, मैं नहीं सोचता हूं। सो व्हेन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो ये डू नॉट और डज नॉट किसके साथ लगेगा? डू नॉट लगेगा, आई के साथ भी डू नॉट लगेगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन, सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्लूरल, इनके साथ लगेगा डू नॉट। और डज नॉट किसके साथ लगेगा? ही शी के साथ हम क्या करेंगे? डज नॉट लगाएंगे कि वो नहीं जाता है, ही डज नॉट गो, वो नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले, वो नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट, वो नहीं दौड़ता है, ही डज नॉट रन, वो नहीं पढ़ाता है, ही डज नॉट टीच, वो नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट। सेम इज द केस विद शी फॉर फीमेल, दैट वो नहीं जाती है, शी डज नॉट गो, वो नहीं खेलती है, शी डज नॉट प्ले, वो नहीं लिखती है, शी डज नॉट राइट, वो नहीं दौड़ती है, शी डज नॉट रन, वो नहीं पढ़ाती है, शी डज नॉट टीच, वो नहीं खाती है, शी डज नॉट ईट, वो नहीं सोचती है, शी डज नॉट थिंक। सो हियर सेम इज द केस विद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सच टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब, ये जो डू है और डज है, इसको हम फिक्रे के शुरू में लेके आएंगे। डू और डज को क्या ले आएंगे? फिक्रे के शुरू में ले आएंगे। जिस तरह था आई गो, मैं जाता हूं, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं, डू आई गो, डू आई गो, क्या मैं जाता हूं? क्या मैं जाता हूं? तो ट्रांसलेशन टेक्निक ने जब इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में आप क्वेश्चन मार्क ये भी लगाएंगे और इधर भी, उर्दू इंग्लिश दोनों में ये लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। अब डू आई गो, ये आगे आई गो मैं जाता हूं, आई डू नॉट गो मैं नहीं जाता हूं, डू आई गो क्या मैं जाता हूं, आई प्ले मैं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले मैं नहीं खेलता हूं, डू आई प्ले क्या मैं खेलता हूं, डू आई राइट क्या मैं लिखता हूं, डू आई रन क्या मैं दौड़ता हूं, डू आई टीच क्या मैं पढ़ाता हूं, डू आई ईट क्या मैं खाता हूं, डू आई थिंक क्या मैं सोचता हूं। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आप बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस भी आप बनाएंगे, और जो स्टेटमेंट दी जाएगी पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, ये आपका ये प्रेजेंट सिंपल में आ गया। ये चीजें डू नॉट, डज नॉट, तो जब जाएगा आ गया क्या वो जाता है, डज शी गो क्या वो जाती है, डज शी गो क्या वो खेलता है, डज शी प्ले क्या वो लिखती है, डज शी राइट
ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रेजेंट सिंपल। उसके बाद यही पहली फॉर्म, अभी हम पहली फॉर्म ही पढ़ेंगे पहले, क्योंकि ट्रांसलेशन टेक्निक है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है। हम टेंसेस के ज्यादा, हम ट्रांसलेशन पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। और ट्रांसलेशन के लिए नेक्स्ट चीज यही फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होगी, बाकी आ जाती हैं ज्यादा टेंसेस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ बनते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एक टेंस बनता है, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ सिर्फ 3 टेंस बनते हैं। बाकी सब टेंस जितने हैं वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ बनते हैं। तो सेकंड थिंग जो आएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ, गो के साथ, जिस तरह के गो पहली फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आईएनजी लगा लें। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद सब टेंस बन जाएंगे, बाकी जितने भी रहते हैं सेकंड फॉर्म को छोड़ के और थर्ड फॉर्म को छोड़ के। इसमें यह होगा कि हम ये लिखेंगे कि मैं खेल रहा हूं या मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। ये टेंस वैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें आ जाएगा आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, मैं दौड़ रहा हूं, आई एम रनिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। एम के साथ, आई के साथ एम लगेगा, बाकियों के साथ इज, ही शी के साथ क्या लगेगा, इज। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी आ गया, सेकंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो यू आ गया, और थर्ड पर्सन प्लूरल हो दे आ गया। इनके साथ लगे, इन तीनों के साथ लगेगा आर, कि हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, वो जा रहे हैं, दे आर गोइंग। अब हूं के बजाय अगर हम लगाएंगे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये चीजें आ गई। अब हम प्रेजेंट, जब था लगा देंगे, था थे थी, तो ज़ाहिर ऑलरेडी ये पास्ट बन जाएगा, मैं जा रहा था। जब ये हो जाएगा मैं जा रहा था, तो इसका मतलब है इधर लग जाएगा वाज, आई वाज गोइंग, मैं जा रहा था। अब इज और आर की जगह वाज और वर लग जाएगा, ही शी के साथ भी वाज लगेगा, और आर के साथ भी क्या लगेगा, वी वर, वाज और वर, वी वर, यू वर, दे वर। कि मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, वो जा रही थी, शी वॉज गोइंग, वो जा रहा था, ही वॉज गोइंग। और सेम इज द केस विद हेयर के हम जा रहे थे, वी वर गोइंग, तुम जा रहे थे, यू वर गोइंग, वो जा रहे थे, दे वर गोइंग। अब था लगेगा। अब फर्क ये है कि प्रेजेंट में क्या लग जाएगा, है, वो जा रहा है, वो जा रहे हैं, वो जा रही है, तुम जा रहे हो, है हूं। और इसमें क्या लग जाएगा, मैं जा रहा था, हम जा रहे थे, तुम जा रही थी, वो जा रही थी, था थे थी लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। और जब है लगेगा तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। अब सेम इज द केस जब था थे, के अब आप देखें ना कि रहा, वो जा रहा है, वो जा रही है, इसके बजाय हम कहेंगे वो जा रहा था, वो जा रही थी, ये आ गया पास्ट कंटिन्यूस। तो वो रही होगी, रहा होगा, रही होंगी। तो ये जो चीजें हैं इसमें भी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, विल बी। इसमें क्या हो जाएगा,
विल बी लगेगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। अब वो जा रहा होगा, इसमें क्या लग जाएगा? ये मैंने पहले भी टेंसेस के बाद आप पहले आपको कहा था कि जो मॉडर्न ग्रामेरियन है उसमें क्या है, विल यूज होती है, शेल ऑफिशियल यूज होती है, बट टू सम एक्सटेंट जिस तरह पहले होता था किसके साथ, शेल, सबके साथ आप विल यूज कर सकते हैं। तो मैं जा रहा हूंगा, इसमें आ जाएगा विल बी गोइंग, आई विल बी गोइंग, ही शी विल बी गोइंग, आई विल मैं जा रहा हूंगा, वो जा रही होगी या वो जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग, शी विल बी गोइंग, हम जा रहे होंगे, वी विल बी गोइंग, तुम जा रहे होगे, यू विल बी गोइंग, वो जा रहे होंगे, दे विल बी गोइंग। ये अब आपको पता चल गया कि कंटिन्यूअस में सबसे पहले कंटिन्यूअस का फार्मूला क्या है कि फर्स्ट की पहली फॉर्म वर्ब और प्लस आईएनजी, इसको हम अगर फार्मूला तरतीब दें तो ये तीनों टेंस जो हमने पढ़े, जो प्रेजेंट सिंपल था, जो प्रेजेंट सिंपल था उसमें यूज होती है वर्ब की पहली फॉर्म, और जो नेगेटिव मनफी जुमले और इंट्रोगेटिव मनफी और सवालिया जुमले बनाने के लिए क्या होगा, इनमें जो सवालिया में डू फिक्रे के पहले आएगा या डज आएगा, तो इसमें क्या मनफी बनाने के लिए क्या चीज होगी, नेगेटिव के डू नॉट और डज नॉट लगेगा। वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म। इसके साथ ही जो हमने आगे पहली फॉर्म का प्लस आईएनजी यूज पढ़ा, फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी यूज किया था, दूसरा जो था फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी यूज, कि ये आपका कंप्लीट हो गया। पहला हो गया प्रेजेंट सिंपल। अब हमारा था कि कंटिन्यूअस, अब दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें लगेगा वर्ब की पहली फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। इससे पहले क्या लगेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। उसके अलावा जो हमने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बजाय अगर हम देखेंगे ये टोटली सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे, बाकी सेम रहेगा सब चीजें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये होगा, फिर पास्ट कंटिन्यूअस आप देखें, पास्ट कंटिन्यूअस में इज एम आर की जगह लग जाएगा वाज, वर, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर आईएनजी। और इसी तरह जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है उसमें लग जाएगा विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। तो इसके बाद जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब हम परफेक्ट में आएंगे, उसमें भी सब में ये लिखेगा हेल्पिंग वर्ब की चेंज के बजाय कि जो अभी हम पढ़ रहे थे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जिस तरह था गो, वेंट, गॉन, तो अब हमने कितने टेंसेस पढ़ लिए जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के प्रेजेंट सिंपल लगता है गो, इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं, बाकी रखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इन तीनों के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लेकिन उसमें आईएनजी का इजाफा हो जाएगा। अब फिर हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अब देखिए कि अक्सर होता है ना कि क्या कहते हैं कि सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है। इस क्या कहते हैं कि इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब जो है कि इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इसका मतलब होगा कि सुबह से, जब टाइम साथ मेंशन किया होगा रही है रही भी आएगा, लेकिन जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसमें भी क्या हो जाएगा कि ये फर्स्ट की पहली फॉर्म है रेन, लेकिन इसके साथ क्या हुआ आईएनजी, लेकिन इसके साथ हैज बीन लगा कि हैज बीन प्लस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का जैसा। इसी तरह हम देखते हैं कि आ जाए कि सुबह से बारिश हो रही थी, तो इधर लग जाएगा हैड बीन प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी। तो अगर थर्ड लगे कि सुबह से बारिश हो रही होगी, तो उसमें लग जाएगा इट विल हैव बीन प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी। ये अब कितने टेंस हमने पढ़ लिए? पहला था प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें सिंपल फर्स्ट की पहली फॉर्म लगती है। उसके बाद फर्स्ट की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किस किस के साथ होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये तमाम जो टेंस बनते हैं ये पहली फॉर्म के साथ, पहली फॉर्म के साथ ये टेंस बनेंगे। अब हम आते हैं दूसरे टेंस के साथ, दूसरी फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ। ये पहली फॉर्म ऑफ द वर्ब थी, इतने टेंस पहली फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ बने। ये हमारा कंप्लीट हो गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज। टेंसेस क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, सो in the previous lecture I have told you about the detail of tenses, so I am going toward translation techniques now, कि पहला टेंस के साथ जितने भी हमने पढ़े वो आ गए। अब एक ही टेंस बनता है इसके साथ, दूसरी फॉर्म के साथ सिर्फ एक टेंस बनता है, उसको कहते हैं पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये वाहिद टेंस है जिसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, बाकी किसी टेंस के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं लगती। जिस तरह हम कहेंगे मैं गया, आई वेंट, इसमें कोई ना एस या एस का इजाफा होगा, ना डज या नॉट डू नॉट लगेगा। इसमें बस सेकंड फॉर्म ऑफ द के मैं खेला, आई प्लेड, वो गया, ही वेंट, वो खेला, ही प्लेड, सबके साथ सेम लगेगा ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन इसका नेगेटिव बनाते हुए, थोड़ा सा नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाते हुए थोड़ा मसला ये होता है कि हम कहते हैं कि वो नहीं गया, वो नहीं गया। इसमें हम लगाएंगे, जब नेगेटिव फिक्रा बनाएंगे, लगाएंगे ही डिड नॉट, लेकिन डिड नॉट के बाद हम सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे कि बल्कि पहली फॉर्म आती हुई लगा लेंगे इसकी, ही डिड नॉट गो। जैसे हम कहें आई प्लेड, मैं खेला, तो इसकी जब बनाएंगे नेगेटिव तो ये कहेंगे आई डिड नॉट प्ले, मैं नहीं खेला। जब डिड नॉट और डिड नॉट इधर लग जाएगा तो फिर क्या आ जाएगा? वर्ब की पहली फॉर्म आ जाएगी वर्ब की, कि नेगेटिव बनाते वक्त
डिड नॉट के बाद फेल की पहली फॉर्म लगाएंगे। इसी तरह जब हम इस फिक्रे का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में भी क्या लगाए जाएंगे, डिड पहले लेके आएंगे, डिड पहले लेके आएंगे। उसके बाद जब हम कोई प्रोनाउन लगाएंगे कि डिड ही गो, डिड ही गो, क्या वो गया, इधर भी सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। जब हम सवालिया फिक्रा बनाएंगे तो डिड ही गो, क्या वो गया। अब ये चीज क्लियर हो गई फर्स्ट और सेकंड फॉर्म। अब हम आते हैं थर्ड फॉर्म की तरफ। इसमें सिर्फ बनता है परफेक्ट टेंस, जो वर्ब की, जिस तरह हमने वर्ब की पहली फॉर्म के मुताबिक, फिर वर्ब की दूसरी फॉर्म, अब वर्ब की तीसरी फॉर्म, जिसमें हो जाएगा गो, वेंट, गॉन, प्ले, प्लेड, प्लेड, ईट, एट, ईटन, राइट, रोट, रिटन। तो जब हम तीसरी फॉर्म लगाएंगे तो तीसरी फॉर्म के साथ बनेंगे तीन टेंसेस, वो होंगे परफेक्ट के। और परफेक्ट कौन कौन सा होगा, परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट भी आएगा, पास्ट परफेक्ट भी आएगा, फ्यूचर परफेक्ट। अब आप देखिए हमने जितने भी टेंस पढ़े, सेकंड फॉर्म लगती है एक टेंस के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल, और सिर्फ तीन टेंसेस के साथ ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। सिर्फ तीन टेंस, वो कौन से हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अब इनमें जब काम परफेक्ट का मीन मुकम्मल, जब काम मुकम्मल हो चुका हो कि मैं जा चुका हूं, मैं जा चुका हूं। अब लेकिन इनमें लगेगा हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म, आई हैव गॉन, आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं। अब जब वो जा चुका लगे के प्रोनाउन में, जब के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है इसके साथ हैव लगेगा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है इसके साथ हैव लगेगा। अब जो सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल है उनके साथ भी हैव लगेगा। छोड़ के सेकंड पर्सन से थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी को छोड़ के, ही और शी को छोड़ के, या कोई भी नेम हो उसको छोड़ के, बाकी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ भी हैव लगेगा। हैव, इन सब के साथ हैव लगेगा। और इन तीन कोई नेम हो तो इनके साथ हैज लगेगा। उनके बाद, इन तीनों के बाद फिर तीसरी फॉर्म लगेगी। अब जिस तरह के मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन, हम जा चुके हैं, वी हैव गॉन, तुम जा चुके हो, यू हैव गॉन, वो जा चुके हैं, दे हैव गॉन। अब लेकिन वो जा चुका है, ही हैज गॉन, ही के साथ क्या लगेगा, हैज गॉन। वो जा चुकी है, शी हैज गॉन, या एली जा चुका है, एली हैज गॉन। ये आ गया प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम आते हैं कि पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हैज और हैव नहीं, बस एक ही लगेगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जिस तरह के हमने कहा वो जा चुका है, ही हैज गॉन, अब लग जाएगा इधर वो जा चुका था, वो जा चुका था। अब क्या लगाएंगे, ही हैड गॉन, ही हैड गॉन। अब उधर हैज और हैव था, हैज लगा था ही शी या किसी नेम के साथ, इधर सबके साथ क्या लगाएंगे, हैड ही लगाएंगे। मैं जा चुका था, आई हैड गॉन, तुम जा चुके थे, यू हैड गॉन, वो जा चुकी है, शी हैड गॉन, वो जा चुके हैं, दे हैड गॉन, वो जा चुके थे। अब ये आ गया तीसरी फॉर्म। अब
जो तीसरा हमने लिखा था प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव लगेगा सबके साथ। वर्ब की तीसरी फॉर्म कि मैं जा चुका हूंगा, I will have gone, I will have gone। मैं जा चुका हूंगा, तुम जा चुके होगे, you will have gone, हम जा चुके होंगे, we will have gone, वो जा चुकी होगी, she will have gone, वो जा चुका होगा, he will have gone। तो ये हमारा तमाम का तमाम ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। ट्रांसलेशन में अब सबसे जो इसके अलावा, जो टेंसेस के अलावा बात आती है ट्रांसलेशन में, वो चीज क्या होती है? वो टेक्निकल चीजें, वो कॉन्सेप्चुअल चीजें आती हैं, वो फिर कंडीशनल सेंटेंसेस भी आते हैं। अब बाज़ औक़ात आ जाते हैं प्रोवर्ब्स, जिनको कहते हैं मुहावरे। मुहावरे हर ज़बान के अपने होते हैं। मुहावरों की ट्रांसलेशन वो अलग होती है। तो वो मुहावरे हर ज़बान के अपने, और जिस तरह लोकल भी जो डायलेक्ट्स हैं, देसी बोलियां हैं, ज़बानें हों, उनमें उनका थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेशन के मेरा दिल बाग बाग हो गया, अब यहां यह होगा कि बाग बाग होने से मराद ये नहीं है कि वो इसकी अब अगर ट्रांसलेशन करते हैं कि ये भी है गार्डन, ये भी है गार्डन। ऐसा नहीं होता कि माई है हार्ट बिकेम गार्डन एंड गार्डन। माई हार्ट बिकेम गार्डन एंड गार्डन। अब ये लफ्सी तर्जमा ये बनेगा, लेकिन हमने करना है कॉन्सेप्चुअल तर्जमा, जो मीनिंग समझा जाए कि वो कहना ये चाह रहा है कि मैं बहुत खुश हो गया, मैं बहुत खुश हो गया। अब जो हम जब इंग्लिश ट्रांसलेशन, उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते वक्त एक तो टेंसेस का ख्याल, टेंसेस के ख्याल के बाद ये नहीं होगा कि जिस तरह ये कहता है कि ये सड़क मुल्तान को जाती है, तो ये नहीं कहा कि दिस रोड गोज टू मुल्तान, ये कहा जाएगा दिस रोड लीड्स टू मुल्तान। अब कॉन्सेप्चुअल मीनिंग कि आपने ट्रांसलेशन का मकसद ये होता है कि दूसरी लैंग्वेज में अपनी बात समझानी है, अपना मैसेज कन्वे करना है कि कहना क्या चाह रहा है। अब हर एक का जिस तरह अदब होता है, अदब मीन रिस्पेक्ट नहीं, यहां किसको कहेंगे लिटरेचर। अब आप देखें लिटरेचर बड़ी मुश्किल जबान है। लिटरेचर जिस तरह गालिब हो गया, इकबाल हो गया, कोई और हो गया, उर्दू का जो शायर हो गया, उसकी भी तशरीह सीखने के लिए बंदे को उस्ताद के पास बैठना पड़ता है, वरना वो तशरीह जिस तरह गालिब ने कहा कि नक्श फरियादी है किसकी शोखी ये तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। अब वो जो लिटरेचर है, अदब है, उसको समझने के लिए उसी ज़बान में उसकी एक्सप्लेनेशन अलग होगी। इसी तरह जो अदब है, अदब की ज़बान, इंग्लिश लिटरेचर एक अलग अदब है, उर्दू लिटरेचर, उर्दू का अदब अलग एक है, हर ज़बान का अदब। अब अदब का ट्रांसलेशन अलग चीज़ है, उसके अलावा मुहावरे का ट्रांसलेशन एक अलग है, जो टेंसेस हैं वो अलग हैं, लेकिन बेसिकली जो ट्रांसलेशन होता है उसका मतलब होता है कि दूसरे को अपनी ज़बान में बंदा बात समझाए। एक और है कि आम जिस तरह पूछा जाता है कि कल दो तरह के होते हैं। अब यहां कंफ्यूजन क्या आ रही है? अब
होता ये है कि कल दो तरह के होते हैं, इसमें ये कि कल दो तरह के होते हैं। बंदे को ये तो मैसेज समझ होती है कि कल को क्या कहते हैं। कल को कहते हैं, एक को कहते हैं यस्टरडे, एक को कहते हैं टुमारो। जो गुजरा हुआ कल, जो आने वाला दिन है, उसको कहेंगे टुमारो। जो गुजरा हुआ कल है उसको कहेंगे यस्टरडे। अब जब ट्रांसलेशन बंदा इस टाइप की ट्रांसलेशन में फंसता है तो इसमें जो कहता है कि अब हम कहेंगे कि आज आ गया टुडे, आज का दिन। इसका मतलब आज का दिन, ये आज का दिन है, फिर क्या आज है 7 तारीख है। यस्टरडे में क्या तारीख थी, 6 थी। आने वाली जो का तारीख है वो क्या होगी, 8 है। 6 7 8। मेन ये है टुडे, ये कल था गुजरा हुआ, ये आने वाला कल है। अब इसका हम ये कहते हैं कि टुडे, ये आज जो है, आज 2 चीजों में गिरा हुआ है। कि हम किसकी कहेंगे कि मेन ये कहेंगे कि टुडे इज surrounded by 2 days। अब एक ये ट्रांसलेशन एक्चुअल के टुडे इज सराउंडेड बाय 2 days। तो ट्रांसलेशन 2 तरह की ट्रांसलेशन, जिस तरह हमने पढ़ा था एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में, ये पैसिव वाइज ट्रांसलेशन है। लेकिन एक्टिव वाइज इसकी टर्म के टुडे सराउंड्स बाय 2 days। क्योंकि ये है, ये अब इसके अगर मेन कॉन्सेप्ट समझाना चाहे वो ये भी कह सकते हैं कि टुडे कम्स बिटवीन यस्टरडे एंड टुमारो। टुडे कम्स बिटवीन यस्टरडे एंड टुमारो। लेकिन वो भी मकसद, लेकिन जो मेन टुडे सराउंड्स बाय 2 days एंड टुडे इज सराउंडेड बाय 2 days। तो मैं जो मकसद आपको ट्रांसलेशन का, कि ट्रांसलेशन में जो पैसिव कंस्ट्रक्शन होगी, एक होता है कि मीनिंग क्या है, मीनिंग कन्वे करने हैं। मीनिंग कन्वे करने के लिए एक्टिवाइज और पैसिवाइज में जाने के बजाय बंदा ये करेगा कि वो एक ही मकसद एक होगा कि एक होते सरफेस मीनिंग और दूसरा हिडन मीनिंग। कि जब हम मीनिंग समझा रहे थे कि मतलब, तो इसमें 2 मीनिंग आ जाते हैं। एक है सरफेस मीनिंग, एक है हिडन मीनिंग। बट जिस तरह सरफेस मीनिंग क्या होगा, आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूं। अब ये सरफेस एक अलग है। दूसरा होगा पैसिव कंस्ट्रक्शन में, अ लेटर इज रिटन बाय मी। खत मुझसे लिखा जाता है। लेकिन हिडन में ये दोनों सेम हैं। दोनों का मकसद एक ही है कि खत मुझसे लिखा जाए या मैं खत लिखता हूं। लेकिन सरफेस, क्योंकि सरफेस ये एक्टिवाइज आ गया, ये पैसिवाइज आ गया, तो सरफेस में ये है कि डिफरेंट है। तो ट्रांसलेशन का मकसद के मैसेज कन्वे करना होता है, मीनिंग कन्वे करना होता है। उसमें सब चीजें जो लैंग्वेज के मुताबिक हो वो करनी होती हैं। कि जिस तरह उर्दू लैंग्वेज, ज़ाहिर है ये उर्दू, फिर ये आ जाएगी इंग्लिश। इसमें जिस तरह मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीजें आ जाएंगी,
आपके लिए चीज आ गई। पहले अगर आपके पास वोकैब्युलरी को कहते हैं जखीरा अल्फाज। जखीरा अल्फाज आपके पास नहीं होंगे कि जिस तरह आपके पास है गो का मतलब आपको पता ही नहीं है कि गो का मतलब जाना है, ईट का मतलब खाना है, तो उसमें यह होगा कि आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। पहली बात है जखीरा अल्फाज। जखीरा अल्फाज के बाद जो चीजें बाकी के सेंटेंस कंस्ट्रक्शन अगर आके ठीक हो तो बंदे के बाद में सेंटेंस एक्सपेंड करता है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जुड़ता जाता है। जिस तरह मैंने आपको कंसेप्ट समझाने के लिए बहुत शार्ट फिक्रे मैंने आपको पढ़ाए, शार्ट फिक्रा, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि जिस तरह के मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, इसका क्या आ जाएगा? मैंने आपको कहा कि इसका हो जाएगा आई गो। ये हो तो ये चीजें आपको आ जाए तो बाकी सेंटेंस आपको आसानी हो जाएगी। दूसरा आप कहेंगे कि मैं स्कूल जाता हूं, इसका आ जाएगा आई गो टू स्कूल। तीसरा, फिर आप अगर सेंटेंस को एक्सपेंड करना चाहें, आप कहेंगे मैं रोजाना स्कूल जाता हूं, इसमें आपका आ जाएगा आई गो टू स्कूल डेली। फिर आपका आ जाएगा मैं रोजाना बाकायदगी के साथ स्कूल जाता हूं, मैं रोजाना बाकायदगी के साथ स्कूल जाता हूं। इसमें भी आपका कहेगा आई गो टू स्कूल रेगुलरली and punctually। यह तरीकाकार आपका कि सेंटेंस एक ही है, मैं जाता हूं। अब उर्दू का थोड़ा सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने देखा होगा मुख्तलिफ है, लेकिन इंग्लिश इधर से ही आपको आगे जाना पड़ेगा। मैं जाता हूं तो इधर आपने लगाया स्कूल। अब जाता हूं, मैं और जाता हूं के दरमियान स्कूल आ गया, लेकिन ये इसी तरह इंग्लिश का बना कि आई गो आगे बना टू स्कूल। फिर स्कूल से पहले आपने कहा मैं रोजाना, इधर फिक्रा लगता है मैं रोजाना स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल डेली। मतलब कि इंग्लिश में क्या था? इंग्लिश में यही था कि आई गो टू स्कूल डेली। अब मैं रोजाना बाकायदगी के साथ स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल रेगुलरली एंड पंक्चुअली। मतलब ये कि आप देखें ना कि इंग्लिश का सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर के गो, उसके बाद बाकी चीजें आती हैं, लेकिन पहले जो था वही सेंटेंस। तो थोड़ा बहुत जब भी ट्रांसलेशन करता है बंदा एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, जब ट्रांसलेशन किया जाता है तो दोनों लैंग्वेजेस का पता हो कि दोनों लैंग्वेजेस का मकसद क्या है। जिस तरह कि आपको पता ईडियम का मेरा दिल भाग भाग गया, ये सड़क कहां जाती है, तो जो चीज है जिसमें एबिलिटी हो, जिसमें एबिलिटी हो, फिर आ जाता है कि कोई चीज अगर किसी चीज के साथ आप तशबीह देना चाहें तो उसमें लाइक एज लगेगा, लाइक या एज लगेगा। हम कहें वो शेर की तरह बहादुर है, वो शेर की तरह बहादुर है। ये उर्दू में इसको तशबीह कहते हैं, इंग्लिश में सिमिली कहते हैं।
हम कहेंगे ही इज अ ब्रेव लाइक अ लायन, और ही इज एज ब्रेव, ही इज एज ब्रेव एज लायन। तो आज हमारा ये जो टॉपिक था, ये टॉपिक था ट्रांसलेशन का, जो हमारा लेक्चर 5 है। लेक्चर 5 हमारा था ट्रांसलेशन का। तो जो ट्रांसलेशन था, ट्रांसलेशन का मतलब कि तर्जमा कैसे किया जाता है। ट्रांसलेशन का तर्जमा दोनों तर्जमे क्या होते हैं कि आपको दिया जाएगा कि उर्दू से इंग्लिश में तर्जमा करें या इंग्लिश से उर्दू में तर्जमा करें। ट्रांसलेशन दोनों किस्म का आता है, और दोनों किस्म के लिए दोनों किस्म की लैंग्वेज का इल्म होना ज़रूरी है कि वो आया मुहावरातन पूछा गया है, आया वो सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से पूछा गया है, आया प्रेजेंट का फिक्रा पूछा गया है, पास्ट का फिक्रा पूछा गया है, फ्यूचर का फिक्रा पूछा गया है, या कोई मुहावरा इस्तेमाल हो रहा है, तशबीह इस्तेमाल हो रही है, इस्तारा इस्तेमाल हो रहा है। ये चीज़ें बंदे को मेंशन रखने के अलावा जो चीज़ें मैंने आपको पहले से बताया वो ये क्या क्या ज़रूरी हैं। सबसे मेन चीज़ वो है वोकैब्युलरी, ज़ख़ीरा अल्फाज। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लैंग्वेज सीखी जाती है कम्युनिकेशन के लिए, स्पोकन के लिए, कि लैंग्वेज किसके लिए सीखी जाती है, जो कम्युनिकेशन के लिए स्पोकन पर्पस के लिए सीखी जाती है, उसके लिए ट्रांसलेशन वाली डिक्शनरीज का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए सीखी जाती है उसके लिए ट्रांसलेशन वाली डिक्शनरी ज़रूरी है। इसलिए ज़ख़ीरा अल्फाज को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, टेंसी स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, मुहावरातन क्या ज़बान इस्तेमाल होती है उसकी ज़रूरत है। इसके लिए मेन चीज़ है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। उसके बाद जो जितना बंदा प्रैक्टिस करता जाएगा इतना उसका तर्जमा अच्छा होता जाएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक तर्जमे के हवाले से था कि ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। जो ट्रांसलेशन टेक्निक मैंने आपको बताई ये आपके लिए इंतहाई फ्रूटफुल है, और मैं समझता हूँ कि देयर इज़ नो एनी टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी और कन्फ्यूजन लेफ्ट हेयर। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।